सेकंड स्लाइड है क्या? So this is our first page. We have got the topic class management system. We have to present on class management system. It is presented by Krisha. First, we will first we will see the login page. In this, you have to enter your username and password. So here, so in this, uh, so in the login page, we have to first enter our username and then password. If the username and password matches with the table present in user detail, नहीं क्या था? User database, then you can log in into the home page. In home page, we have create user, remove user, change password, schedule, attendance, and faculty details. The Create user and create remove user user and remove user can be accessed only by can the be accessed only admin. by the admin, and change password can be no, वो छोड़ो. Any user can change their password by entering their username and the current password. This you have to enter your username and current password. Then you have to enter your new password what you which you want to apply now, take now, जो भी. And then you have to confirm it. Create user can only be accessed by the admin. He can only create a new user by giving a unique username and password, by giving a new username and password, and user type that the new user is admin or local user. Then he can also remove the user by entering username and password of that user and the reason for removing him. Then change password experiment. In अच्छा, schedule the admins can or the local users can also see the schedule, and it can be only updated or modified by the admin. In this course, starting time and ending time is to be entered, and that will get stored in a database present. Then attendance is same. The attendance is of the faculty, the teachers who are teaching. In this, you have to enter the per hour salary of that faculty, his ID, and the entry and exit time of that faculty. It will be get stored in a separate database. Then this is for faculty details. You can see faculties and their details here by using show all faculty, add a new faculty and remove the existing one, or you can update the details of that faculty. This is the flow chart that how our project will go, and this is the record. This flow chart. This is a record of procedure shows teachers record that teachers entry timing and exit timing and total hour we calculated, and then the number of days we attend the classes, and then uh, according to hours of classes the total salary of faculty and teachers will be calculated. Thank you. Yes, हाँ ma'am. मैम. This
Login page. Login page. Yes. Yes. Ma'am, is it visible? Visible. Not visible. नहीं ये बता रहा है There's some network issue. सर नेटवर्क इशू है हाँ अभी विजिट Network issue है. हाँ. Yes, ma'am. टोटल कितने टाइप के लॉगिन है इसमें? टोटल कितने टाइप का लॉगिन रहेगा? सर टोटल 3 टाइप लॉगिन रहेगा एक एडमिन के लिए और एक लोकल यूजर के लिए बट लोकल यूजर को सिर्फ एडमिन ही एक्सेस कर सकता है अच्छा, ये वाला जो लॉगिन पे ये क्या एडमिन का है या यूजर का है? तो ये ये नॉर्मल normal login page है. कोई लॉगिन इन कर सकता है या तो एडमिन होम पेज लॉगिन कर सकता है नॉर्मल यूजर एंड पासवर्ड किसी का भी देख सकता है क्या यहाँ पर ये जो टेबल में नहीं शो कर रहा है वेबसाइट वो में? एक टेबल है. सर ये टेबल है, डाटाबेस टेबल का वो है किससे रिफ्लेक्ट हो रहा है? मैम ये डेटाबेस में जो टेबल हम लोग बनाएंगे ना यूजर डिटेल्स का या फिर फैकल्टी डिटेल्स का सॉरी लॉगिन डिटेल्स का वो टेबल है. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके. मैम फिर लॉगिन करने के बाद हम लोग होम पेज में आएंगे तो उसमें ये सारा ऑप्शंस रहेगा कि हम लोग क्रिएट कर सकते हैं एक यूजर को, रिमूव कर सकते हैं किसी यूजर को या फिर कोई भी यूजर नॉर्मल यूजर हो चाहे एडमिन हो कोई भी अपना पासवर्ड को चेंज कर सकता है अपना यूजर आईडी यूजर नेम और अपना करंट पासवर्ड को डाल करके. नेक्स्ट पेज में चलते हैं, स्लाइड चेंज करिए. क्रिएट यूजर. मैम मैम नेटवर्क इशू नेटवर्क इशू है हम तो दिखाएं. ये करना यहाँ से हो रहा है. नेटवर्क बहुत हाँ सर कर रही 1 मिनट ऊपर ही आएगा ऊपर ही आएगा. फिर उसमें कनेक्ट लोग हम नहीं होते. Next one. अभी शो कर रहा है. मैम ये होम पेज है इसमें बताएं कि क्रिएट कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं और ये दो चीज जो है वो एडमिन बस इसको एक्सेस कर सकता है. चेंज पासवर्ड में कोई भी यूजर अपना यूजर नेम और करंट पासवर्ड डाल के अपना पासवर्ड को चेंज कर सकता है. देन एडमिनिस्ट्रेशन वाला थोड़ा नहीं बनाया है. शेड्यूल शेड्यूल में शेड्यूल वाला पेज दिखा रहा है. इस पेज में शेड्यूल रहेगा कि किस फैकल्टी का टाइमिंग हर फैकल्टी का अलग अलग शेड्यूल रहेगा कि किस फैकल्टी का schedule कौन सा डे. ये वाला जो शेड्यूल वाला जो फॉर्म तुम लोग बनाई हो इसमें कोर्स क्लास टाइम स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम दिया हुआ है, ठीक है, और कौन सा पेपर है पेपर नेम भी डालो इसमें, ठीक है. मैम वो थोड़ा चेंज करेंगे डाटाबेस में अभी ना मतलब इसमें सही नहीं बनाया है सारा फैकल्टी का अलग अलग बनाएंगे वीकली डेट रहेगा भी वो. मेंशन रहना चाहिए इसमें, ठीक है. ये जो है ना आप- डेली क्लास का एंट्री जो है ना हम चाह रहे हैं तुम लोग से इसमें डेट भी मेंशन हो, ठीक है. हाँ, फैकल्टी का नेम मेंशन जो तुम दिखा रही थी नेक्स्ट वाला उसमें पेज में वो ठीक है. कोर्स इसमें तुम अभी इसमें दी है,
ठीक है, पेपर नेम इसमें ऐड करना है, लिख लो जो जो मेरे को चाहिए है इसमें। सेशन ऐड करना है इसमें, सेशन भी एक मेंशन करोगी, सेशन सब अपना डालेगा, जो इंटर्नशिप्स के करते हुए कर रहा है वो भी अपना सेशन डालेगा, मतलब जो एंट्री करेगा उसको, और जो नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट होगा वो भी अपना सेशन डालेगा, कौन सा पेपर, कौन सा फैकल्टी, कौन सा सेशन का पेपर हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, और टाइमिंग टाइम आउट तो तुम लोग इसमें मेंशन की है। ठीक है, और उस हिसाब से ये रहेगा, और एक तो पेमेंट डिटेल्स भी रहेगा। पेमेंट मैम डिटेल्स, फिर हाँ, चाहिए जो नेक्स्ट पेज में हम देखे हैं उसमें तुम की है, इसके बाद वाला पेज करो। मैम इसमें क्या क्या चाहिए था फिर से बताइए मैम। मैं बता दे रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली चाहिए शेड्यूल से क्या है ना, जैसे हम लोग शेड्यूल फिक्स किए हैं। ठीक है, सपोज करो तुम लोग का क्लास है, आज का जो क्लास है, ठीक है, कोर्स हो गया, तो तुम लोग इंटर्नशिप्स के स्टूडेंट हो, इंटर्नशिप्स हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, फैकल्टी नेम हमको चाहिए, कौन फैकल्टी तुमको, कौन मेंटर तुमको डील कर रहे हैं उनका नाम हमको चाहिए है। ठीक है, कोर्स चाहिए है, कोर्स तो हो गया, चलो पेपर नेम, पेपर नेम फॉर एग्जांपल कौन सा पेपर तुम्हारा चल रहा है, डेटाबेस चल रहा है कि क्या चल रहा है, कौन सा पेपर, जैसे सी शार्प चल रहा है उसका नेम तुमको इंडिविजुअल मेंशन करना है। ठीक है, सेशन, कौन सा सेशन तुम्हारा 22-23 का सेशन चल रहा है, 23-23 का सेशन चल रहा है, उसमें सेशन मेंशन करना है इसमें। ठीक है, और टाइम इन टाइम आउट तुम लोग जो दी है, जिस समय में फैकल्टी इन करेगा उसका टाइमिंग और क्लास एंड टाइमिंग वो उसमें मेंशन रहेगा। ठीक है, और जो रिफ्लेक्ट डेटा, जो एक्सेल जो यहाँ पे बगल में शो हो रहा है, ठीक है, और इसमें पेमेंट डिटेल्स भी मेरे को चाहिए। ठीक है, उसका पेमेंट डिटेल्स पर आवर के हिसाब से कितना है वो भी मेंशन आपको यहाँ पेमेंट डिटेल्स मैम, पेमेंट डिटेल्स और फैकल्टी एंट्री और एग्जिट टाइम इसमें है, अटेंडेंस में है। अच्छा, इसमें जो तुम पर आवर्स, ठीक है, फेयर आईडी, ये जो आईडी, ये आईडी जो क्रिएट होगा ये ऑटो जनरेट होगा क्या? यस मैम। अच्छा, ठीक है, तो टीचर एंट्री ये मतलब सपोज करो अटेंडेंस में ऑटो करके आएगा उस तरीके से। मैम मतलब टीचर का आईडी डालना पड़ेगा, कौन टीचर प्रेजेंट है, जैसे हम लोग आईडी डालेंगे और उसका एंट्री एग्जिट टाइम डालेंगे तो वो उस टीचर का अटेंडेंस में प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो टीचर एंट्री टाइम एंड एग्जिट टाइम यहाँ पे भी तुम मेंशन की है। हाँ मैम, यहाँ पर ना, यहाँ पर बस शेड्यूल रहेगा, कौन टीचर का कितना टाइमिंग पे क्लास है, वीकली वो रहेगा, हर टीचर का अलग अलग। यहाँ पर ये कोर्स की जगह में मैम थोड़ा चेंजेस आएगा इसमें, ये थोड़ा हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। हम क्या चाह रहे थे ना, बेसिकली हम जो डेली क्लास एंट्री जो चाह रहे हैं, मेरा जो शेड्यूल है, ठीक है, हम उसमें कल का मेरा क्या शेड्यूल, तुम ऐसे भी प्री डिसाइड भी कर सकते हो उसमें मेरा कि कल का मेरा क्या क्लास होने वाला, उसका डिफरेंट पेज बना सकते हो, वो भी तुम लोग बना सकते हो। मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, वीकली शेड्यूल हर वीक का डिसाइडेड रहेगा कि फर्स्ट मतलब पहले ही एक वीक का पूरा डिसाइड हो जाएगा किस किस टाइम में किसका किसका क्लास होगा। एग्जैक्टली, और अगर वो कैंसिल होता है, तो उसको मेंशन भी करना होगा, उसका पेमेंट वाले शीट से कोई लेना देना नहीं, वो नॉर्मल एंट्री वाला रहेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस टुमारो गोइंग टू बी हेल्ड। ठीक है, तो वो उसमें मेंशन रहेगा, जैसे हम टाइप करें कल इसका 1 घंटे का टाइम है, इसका वो डिफरेंट रहेगा उसमें। ठीक है, अब मैम वो अटेंडेंस लेने का टाइम हम लोग कैंसिल कर देंगे क्लास को, अगर उस टाइम का क्लास नहीं हो रहा है तो। ठीक है, अब मेरा सवाल उठता है कि मुझे डेली क्लास का रिकॉर्ड चाहिए है, मुझे आज की डिटेल्स चाहिए, जैसे आज का मेरा बेसिकली है क्लास टाइमिंग, क्लास टाइम आउट जो है ये इंडिविजुअल फैकल्टीज के ऊपर हो रहा है ना। यस मैम। अच्छा, तो मैम वो एक्सेल के थ्रू आपको शो हो जाएगा, टेबल के एक्सेल में टेबल के थ्रू आपको दिखा देगा कौन प्रेजेंट था कितना। ये जनरेशन क्या मैनुअल जनरेशन होगा, कोर्स में हमको इसमें टाइप करना है ना, कोर्स जो है क्लास टाइमिंग, स्टार्ट टाइमिंग, इसमें और भी कुछ डेट भी मेंशन कर दो, इसमें डेट मेंशन हाँ, रहेगा, पेपर नेम रहेगा, सेशन रहेगा, ये चीज मेंशन कर देना इसमें। हाँ, फैकल्टी नेम, पेपर नेम, सेशन, ये वाला एंड डेट पेमेंट भी रहेगा। हाँ, पेमेंट भी रहेगा, पेमेंट तुम वहां पे जो भी मेंशन कर रही हो हम यहाँ पे भी पेमेंट मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल क्या है ना, यहाँ पे पेमेंट हम मेंशन करना चाहते हैं क्योंकि ये मैनुअल जनरेट करके फिर वो नेक्स्ट पेज में जाए। अच्छा, हाँ, ठीक है मैम। समझी, उस हिसाब से मुझे ये चाहिए। मुझे उसके बाद कैलकुलेट, अगर यहाँ पे हम जैसे तुम 10 से 12 ली है, यहाँ पे 10 से 12 है ना, उसका पेमेंट कैलकुलेट करके आ जाना चाहिए। हाँ मैम, वो कैलकुलेट करके यहाँ पे टोटल आवर्स में वो स्टोर हो जाएगा डेटाबेस में, और आपको वो एक्सेल में आपको शो होगा। ठीक है,
ठीक है, मुझे इसमें बाकी यही चाहिए, और उसमें और एक मेरे को चाहिए फैकल्टी पेमेंट डिटेल्स। तुम लोग बनाइए फैकल्टी पेमेंट डिटेल्स। जैसे पेमेंट डिटेल्स मतलब किसको कब पेमेंट किए हैं, किस डेट में किए हैं, कौन कौन सा पेपर के लिए किए हैं, वो भी एक उसकी मेंशन हमको वाला है। चाहिए। सो हाँ मैम, ये डाल देंगे फैकल्टी में कि किसका मतलब कितना किस फैकल्टी को पेमेंट है या नहीं है, ये फैकल्टी वाला में। हाँ, तो फैकल्टी का एक बनाओ, फैकल्टी पेमेंट डिटेल्स एक बनाओ, जिसमें मेरा ना, जिसमें हम जैसे बोले थे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स रखो ऊपर में, फैकल्टी नेम वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। जैसे हम फैकल्टी को क्लिक करेंगे मेरा फैकल्टी का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। सपोज करो किसी फैकल्टी का, जैसे ऊपर में ड्रॉप डाउन एक बॉक्स रहेगा फैकल्टी के नीचे में, उसमें सारे फैकल्टी का नेम जो है ना रिफ्लेक्ट करेगा वहाँ पे। जैसे हम हाँ। इंडिविजुअल फैकल्टी इनको चूज करेंगे, नीचे जो एक्सेल में उसका पूरा डिटेल्स रिफ्लेक्ट करेगा। क्या क्या डिटेल्स हमको चाहिए उसका, जैसे सीरियल नंबर है, फैकल्टी नेम तो उसमें रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, डेट जो है, क्लास डेट्स जो है उस हिसाब से, ठीक है, तुम्हारा क्लास ड्यूरेशन कितना लिया है, ठीक है, पेमेंट डिटेल्स जो है उसमें वो रिफ्लेक्ट, डेली बेसिस का पेमेंट डिटेल्स कैलकुलेट करके यहाँ पे आ जाएगा। तुम बनाई हो ना इसको, एड्रेस फेड्रेस ये वाला चीज ये ठीक है, ये उसका इसमें चल जाएगा, उसका इंफॉर्मेशन में चल जाएगा, फैकल्टी इंफॉर्मेशन में चल जाएगा ये, ठीक है, जो तुम एंट्री करना चाह रही। हाँ, जो तुम बनाइए नेम, आईडी नंबर, फोन नंबर, एड्रेस, डिपार्टमेंट नंबर, फीस, उसके इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। हमको एक और इसमें डिटेल्स चाहिए जिसमें फैकल्टी पेमेंट डिटेल्स। फैकल्टी का डिटेल्स जैसे ही क्लिक करेंगे, हमको सपोज करो फॉर एग्जांपल हमको पेमेंट करना है, ठीक है, हमको कैसे पता चलेगा उस बंदे का पेमेंट कैसे हमको करना है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मुझे फैकल्टी पेमेंट डिटेल्स को रिफ्लेक्ट करना है वहाँ पे, ठीक है, ताकि जैसे हम एक फैकल्टी का चूज करें उसका डेली बेसिस के 1 से लेके 30 तारीख का कितना क्लास लिया गया है पर डे बेसिस में वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। एग्जैक्टली ये पेमेंट डिटेल्स। ओके, इसमें रहेगा कि फैकल्टी कितना से कितना क्लासेस लिए हैं पूरा और डिटेल्स। सपोज कितना करो तुम पेमेंट कर रही है, फॉर एग्जांपल तुम पेमेंट पेमेंट कर रही है, ठीक है मनीषा, तुम्हारा सपोज करो तुम एक फैकल्टी है, ठीक है, तुम्हारा हमको पेमेंट करना है 1 से लेके 30 तारीख के डेट का, ठीक है, तो मेरा सपोज करो जिस दिन में तुम क्लास की है उसी दिन का तुम्हारा पेमेंट कैलकुलेट होके डेली बेसिस में वो एक्सेल शीट में बगल में दिखेगा, ठीक है। और हाँ, हम ऐसे भी कर सकते हैं, उसमें हमको 1 से लेके 30 का डिटेल्स चाहिए, तो 1 से लेके 30 का डिटेल्स ही कैलकुलेट करके आएगा, और उसका पेमेंट नीचे डिटेल्स रहेगा पेमेंट करके। तो पेमेंट करना है मुझे 1 से लेके 30 का ही पेमेंट करना है, तो बगल में क्या ऑनलाइन पेमेंट, ऑफलाइन पेमेंट जो भी है पेमेंट प्रोसीजर, उसमें डिटेल्स लिखना है मेरे को पेमेंट में। ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो क्या पेमेंट कर रहे हैं, क्या है नहीं है, वो मेंशन करना उसमें, समझी। तो उसके बाद रिपोर्ट में ये जनरेट होगा, मुझे 1 से लेके 30 के बीच में इतना डेट का पेमेंट मैंने कर लिया है, ठीक है, मैंने पेमेंट कर दिया है, हाँ, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सपोज अब हम हर इसका रिपोर्ट क्या बनेगा, मेरा हर महीने का कितने फैकल्टी के ऊपर में मैंने कितने अमाउंट स्पेंड किया है, ठीक है, वो मेरा उस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। तुम लोगों को डेटाबेस ऐसे बनाना है। ओके मैम, समझ गए, क्लियर है? यस मैम, हो हाँ जाएगा मैम। रजत, फिर मैम नेक्स्ट इसका ये फ्लो हाँ चार्ट। सुन रहे हो? हाँ हाँ हाँ, तुम इसमें बोलो ना क्लास में, इसमें और क्या चीज ऐड ऑन होना चाहिए? फैकल्टी डिटेल्स जो मैम आप बोले वो सारा चीज ठीक है, हाँ, ठीक है, और आगे और इसमें तो और कुछ ऐसा ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना, मतलब जैसा है उसका उस लेवल से ठीक है। हाँ 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 हाँ। ठीक है मनीषा, यही सारा कुछ चीज है जो तुमको एडिट करना है, ठीक है, हम तुमको डिटेल्स दे देंगे, वही तुमको उसी तरीके से तुमको बनाना है, जितना तुम बनाइए उतना ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन हम तुमसे बात कर लेंगे कैसे करके उसको करना है, फिर उसमें तुम उसको ऐड कर लेना, एक काफी है। रिपोर्ट क्या बनाना है, रिपोर्ट में तुमको क्या क्या चाहिए, हमको डेली रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, फैकल्टी वाइज मंथली रिपोर्ट चाहिए, उस हिसाब से ये 2 रिपोर्ट तुम बनाओगे। और स्टूडेंट भी रिकॉर्ड बना सकते हैं अटेंडेंस। हाँ फाइन, हाँ स्टूडेंट रिपोर्ट भी तुम बना के दिखा सकते हो, स्टूडेंट उस हिसाब से। मैम स्टूडेंट रिकॉर्ड तो दूसरे का है ना, वो उनको मिला है। अच्छा, वो अटेंडेंस वाले में है। मैम वो करेंगे हम लोग, तो हम लोग खाली फैकल्टी का मिला था ना। हाँ ठीक है, ठीक है,
ठीक है मैम। समझ आ गया? मैम ये प्रेजेंटेशन। ये सब क्लियर हो गया है? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये चीज जो मुझे चाहिए है, मुझे अपने, मैं तुम लोग को बता दे रही हूँ, इस सॉफ्टवेयर से मुझे क्या चाहिए है, मुझे यही चाहिए सॉफ्टवेयर से, मैं डेली बेसिस में मैं क्लासेस को मैनेज कर पाऊँ, उसके डिटेल्स को देख पाऊँ, पेमेंट डिटेल्स को मैं कर पाऊँ इजीली। ठीक है, ऐसे नहीं कि मुझे मुझे कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, वैसा नहीं है, मुझे एकदम इजी प्रोसेस चाहिए कि तुम Okay, ma'am. बच्चा को भी ये सॉफ्टवेयर अगर देती हो तो बच्चा भी तुमको उसको एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, इजी, एनीबडी कैन लाइक हैंडल दिस सॉफ्टवेयर, उस तरीके से मुझे सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली, वो हम बताना चाह रहे हैं। ओके मैम। ठीक है, हाँ, तो Thank जो you, जो ma'am. चीज है उसको मेंशन कर देना, हम बाद में तुम लोग को लिख के बता देंगे। ठीक ओके है? मैम। ओके। दूसरा कौन है? Ma'am, shall we start? Yeah. So this is our project. We have got the topic of pathology software. First is our login page. Here is the user ID, name and password. There are two buttons, login and cancel. I have to add one more option over there, that is of forgot password, which I haven't added till now. And this is the login page which I have created, so it will only be there in the project. I won't be changing it. If you require, if you need anything to be added, so you can tell me in that. Once the user types its username and password and clicks on login, the value of username ID and password will be checked, cross-checked in the database which has already been written. If the username, password and user role matches with the admin, then a separate page will be opened in which each and every function will be allowed to use. In other case, when the login is done by any staff member, then there will be restrictions in using certain functions. So this is our next page. It will be open like this. Here it's our dashboard, and I need to change these list names. The options will be of test list, billing details, blood and semen collections, referral sharing, and patients. And there will be of patient daily reports. Once the user clicks on the new registration button, then it will go to the next page. This is our next page. In this, we will add the new patient
So here are the details that we are needed to collect: patient name, husband or father's name, age, gender, child, mobile number, and collection date. It will be of current date, which will directly be given from the system. Sample type and sample sent. Once these details will be filled, then we will move to the next page. Here is a list of certain functions which we can use. This we will adding on, but we will change certain functions over there also. Once the patient information will be given, then we will proceed to the next page, and the next page will like this. In here, select test option is there, in which we will need which will be needed to select the test which the user has to take. Once we will select all the tests, and then we will add whichever test we needed to done, and after that we will move to the next page. The next page will look like this. Here the test names will come, and then in the result column we need to write the result which we will obtain from the test done. So it will come like this: the unit and reference range, everything will be visible automatically. There is no need to select anything else. And after the form is filled, the report will generate itself. In that report also, there is no need to be changed. Then we will move to the next page. So this is our next page. In this page, we are showing that we will take the list of all the certain required tests which are needed to be done, or which will be done over there in that pathology lab. The format of test will be like this: test name will be there, unit will be there, normal range will be there, and price will also be there, the cost of the certain test. Then we will move to the next page. In this page, it shows everything, and this page will only be open to admin. Here, the admin can see daily report, expenses, purchase service, and sales service. Test will be whichever test will be done, how many employees are there present today, everything will be shown in this page. The amount of payment collected by the customers, everything will be shown in this page. Then we will move to the next page. In this page, it is showing the price, and after all the details will be filled, the patient will be required to give a certain amount which will be shown in this page. After calculating total of all the tests which the patient needs to be done, so it will be shown in this page. In this page, I just want to show this graph which I have liked, which I want to add in my project. The graph of sales, expense, purchase, and income. So we will move to the next page. This is the format of the report which will come after entering the results values. There will be QR scan code, barcode, and the name of the patient, their details, the doctor detail which had done the checkup, and the report will be like this.
And now this is the final receipt which will be given to the patient. And in this project I need to add the list of doctors and employees, those who will be working over there, and the store management, how much amount of things are there in a store, um, what amount which we need to purchase anything, or that will be there. Thank you. रजत, अच्छा, इसमें जो है बहुत सारा चीज मुझे मिसिंग लगा, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में आओ ना। अच्छा, ये जो यूजर है, यूजर मैनेज कहाँ से होगा? यूजर मैनेज के लिए कोई कहाँ से एडमिन, यूजर आईडी कहाँ से क्रिएट होगा? न्यू आईडी। हाँ, न्यू आईडी। जैसे यूजर मैनेज कहाँ पर से करेंगे हम लोग? यूजर मैनेज के लिए एक होगा कहीं से? हाँ, वो बनाए नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं है, ये लॉगिन पेज अभी बनाई है बस। इसमें बस यूजर आईडी, फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन नहीं है और क्रिएट न्यू लॉगिन वाला ऑप्शन है। ओके, थर्ड सेकंड स्लाइड में चलो ना, थर्ड स्लाइड में चलो। ये जो पेशेंट डिटेल्स ऐड हो रहा है, हाँ, नहीं, थर्ड में क्या है? ये डैशबोर्ड डैशबोर्ड, ठीक है। जो भी हमारा जो टेस्ट है, टेस्ट अपडेट कहाँ से होगा? टेस्ट अपडेट के लिए भी एक अलग से मास्टर बनेगा, ठीक है। हाँ, ठीक है, वो ऐड नहीं है तुम्हारे पास। ये सारा कुछ नोट डाउन कर लो। हाँ, कर रहे हैं। ठीक है, और पहले यूजर मैनेज करने के लिए एक सेक्शन चाहिए जो यहाँ पर नहीं है। वो सारा ऐड करना है। वो अभी बस रिपोर्ट लिख के छोड़ दिए क्योंकि हम समझ नहीं आता कि और क्या क्या ऐड करें, इसलिए वो सारा ऑप्शन सब ऐड करना है। वो सारा कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, वो ऐड कर लेना है। और जो भी तुम्हारा जो टेस्ट है, टेस्ट मैनेज करने का एक अलग मास्टर होगा, ठीक है। वो जहाँ से जो भी तुम्हारा न्यू टेस्ट है वो ऐड करेंगे या रिमूव करेंगे, ठीक है। और जो भी टेस्ट होता है ना, टेस्ट का भी अलग अलग कैटेगरी होता है, और कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरी होता है, ठीक है। वो चीज को कैसे मैनेज करना वो भी मास्टर के थ्रू होगा, ठीक है। हाँ, उसको भी ऐड करना है ना, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट वाले में जाओ ना, जहाँ पर इसे हम यूजर ऐड कर रहे हैं और पेशेंट डिटेल्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पेशेंट डिटेल ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ पर जब पेशेंट ऐड करेंगे तो यहाँ जो अच्छा, रेफरेंस बाय डॉक्टर नेम दिया है ना, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये ऐड होगा, उसके बाद जाएगा वो कौन सा टेस्ट करा रहा है। नेक्स्ट पेज में चलो ना, हाँ, यहाँ पर ही आएगा। तो जो भी टेस्ट है तुम्हारा ऐड होगा, ठीक है। यहाँ पर इस सारा कुछ ओके लग रहा है मुझे। और नेक्स्ट पेज चलो, ये क्या है? ये हम लोग जब सेलेक्ट कर लेंगे ना कि क्या क्या टेस्ट करना है, तो उसके बाद ये ओपन होगा। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज डालेंगे, उसका रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगा उससे। ओके 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 ओके, ठीक है। ये सारा ये भी ठीक है, ओके। ये लिस्ट है टेस्ट का, जो क्या क्या टेस्ट करेंगे उसका। अच्छा, ठीक है। ये मैं यही बोल रहा था, ये वाला जो डेटा है ना, आपको इसको मैनेज करना होगा, तो ये एडमिन के थ्रू होगा, ठीक है। ये जो मास्टर, जो एडमिन यूजर होगा वही इसको क्रिएट करेगा, ठीक है। हाँ, मास्टर पेज से होगा ये, ठीक है। यही चीज मैं बोल रहा था। ये जो सारा कुछ है, ये रिकॉर्ड ऐड होगा या रिमूव होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट पेज, ये हमारा होम पेज है क्या? ये
नहीं, ये मास्टर जो है एडमिन है उसके लिए है ये पेज, वही एक्सेस कर सकते हैं। ओके परचेज कितना हुआ है, सेल्स कितना हुआ है, टेस्ट कितना, डेली रिपोर्ट क्या है, वो सारा चीज है इसमें, ओके कितना पेमेंट आया है, वो सब कुछ। अच्छा ओके नेक्स्ट ये बिलिंग ठीक है ये भी ठीक है। इसके बाद सारा कुछ ओके है, बस मैं बोलना चाह रहा था वही जो मास्टर पेज होगा ना वो मास्टर पेज हाँ। आपका इसमें मिसिंग है। ठीक है हाँ, ठीक है थैंक बाकी यू। सब ओके है। इसको जैसे रेडी करने के बाद एक बार मुझे बताओगे ठीक है? ओके, हाँ, ओके सर। कैसे शेयर कर रहे हैं ब्लड सिंपल आदमी क्या क्या रिपोर्ट करवाना ये चेक करा सारे मास्टर में ब्लड कैंसर में कितने सब्जेक्ट्स कितने टेस्ट हो सकते हैं यूरिया यूरिया में कितने टेस्ट हो सकते हैं बस वो ब्लड लेके आया तो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है क्या टेस्ट है शोर देखना तो में था तो क्या प्रेजेंटेशन लाना क्या में था पेशेंट का डॉक्यूमेंट्स जेंडर और एज इसके अलावा कौन डॉक्यूमेंट्स में डाउनलोड्स में कॉन्टैक्ट नंबर ये तो ले लो बाकी चीजें ले प्लस इस डॉक्टर ने रेफर ये ध्यान और ब्लड टेस्ट ये कर सकते हैं कि ब्लड टेस्ट ग्रुप वाइज ये भी मैं कौन बोली हाँ, इसमें तो वॉइस वॉइस हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ गुड आफ्टरनून। हेलो या सर हम लोग का जो स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम के ऊपर है और इसका मेन पर्पस है अटेंडेंस रिकॉर्ड को किसी ऑर्गेनाइजेशन अगर बोल हेलो ऑन कर माइक उसका माइक ऑफ कर दिया मैम स्टूडेंट अटेंडेंस सिस्टम का जो मतलब मेन पर्पस इस प्रोजेक्ट को बनाने का जो अटेंडेंस रिकॉर्ड्स को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्कूल के अटेंडेंस रिकॉर्ड्स को आवाज आ रहा है वॉल्यूम को अब बोलो मैम वॉइस क्लियर आ रहा है क्या ओ उससे अच्छा वीडियो बनाना तो किए है मैम वॉइस क्लियर आ रहा है ओके मैम तो इस प्रोजेक्ट को बनाने का मेन पर्पस है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्कूल या कॉलेज के अटेंडेंस के रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करके रखा जाए।
तो पहला हम लोग का पेज जो है वो लैंडिंग पेज है, जिसमें नेविगेशन बार मतलब पहले में स्टूडेंट लॉगिन है, देन स्टाफ लॉगिन है। नेविगेशन बार में होम पेज है, स्टैंडर्ड है, स्टाफ है, फीडबैक है, एडमिन पैनल है, कॉन्टेक्ट है इसका है। देन उसके बाद स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स में हम लोग को स्टैंडर्ड डिविजन सीट वगैरह सारा का डेटा मिलेगा। और हाँ, स्टाफ रिपोर्ट्स में स्टाफ का जितना भी स्टाफ मेंबर्स है उनके सारे ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, क्वालिफिकेशन क्या है, सिटी, ये सारा रिकॉर्ड्स रहेगा। देन फीडबैक फॉर्म में हम उन मतलब नेम, इंटर नेम, कांटेक्ट और फीडबैक, मतलब जो भी हम फीडबैक देना चाहते हैं उनको वो सारा फीडबैक फॉर्म में रहेगा, जो अवेलेबल रहेगा वो सारा। कांटेक्ट अस में हमको मतलब उस स्टाफ को कैसे कांटेक्ट किया जाए उसका सारा कांटेक्ट डिटेल रहेगा। देन एडमिन का जो है लॉगिन सेक्शन रहेगा। एडमिन के लॉगिन सेक्शन में हम मतलब एडमिन का लॉगिन पेज है ये। देन उसके बाद जो एडमिन का पेज है उसमें सारा जो ऑप्शन है वो एडमिन मेन्यू है, स्टैंडर्ड है, डिवीजन है, स्टाफ, स्टाफ रिपोर्ट, कंप्लेन, ये सारा उसके पास राइट्स रहेगा कि वो चेंज कर सकता है। देन उसका डिवीजन, डिवीजन के अंदर भी डिवीजन, स्टैंडर्ड नेम, सीट वगैरह सारा उसका डिटेल्स एडेड है। स्टाफ में भी स्टाफ नेम, ईमेल, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, ये सारा स्टाफ के अंदर वो एडेड रहेगा डिटेल्स। देन स्टाफ रिपोर्ट्स में भी ईमेल आईडी, मोबाइल, क्वालिफिकेशन, ये सारा। कंप्लेन फॉर्म में हम मतलब कंप्लेन कर सकते हैं अगर जैसे उसका कोई भी इशू है कि हॉल टिकट जो है वो प्रिंट नहीं हुआ है सही से, तो जिस कंप्लेन फॉर्म के थ्रू हम कंप्लेन कर सकते हैं साइन। देन फिर से हम लोग लॉगिन करेंगे, ये लैंडिंग पेज दोबारा आएगा क्योंकि इसमें हम मतलब स्टाफ लॉगिन करेगा। स्टाफ का जो भी प्रोफाइल है वो लॉगिन होगा और स्टाफ के लॉगिन पेज में रहेगा होम, ऐड, स्टूडेंट, स्टूडेंट रिपोर्ट्स, अटेंडेंस, अटेंडेंस रिपोर्ट्स, एडवांस रिपोर्ट, ये सारा उसका मतलब उसके अंडर में स्टाफ के अंडर में ये सारा ऑप्शंस उसके पास रहेगा। देन उसका ऐड न्यू स्टूडेंट डेटा, वो किसी भी स्टूडेंट का डेटा जो है वो ऐड कर सकता है, ये स्टाफ के पास रहेगा, राइट। देन उसका स्टूडेंट्स का जो भी रिपोर्ट्स है वो जनरेट कर सकता है स्टूडेंट रिपोर्ट्स के थ्रू। देन अटेंडेंस, अटेंडेंस में जो भी मतलब वो अटेंड करे क्लासेस या फिर एब्सेंटीज जो भी है उसका, तो वो अटेंडेंस में उसको शो करेगा। एंड अटेंडेंस रिपोर्ट्स की वो कितने दिन एब्सेंट था, कितने दिन वो प्रेजेंट था, ये सारे डिटेल्स, उसको डेट वगैरह सारा चीज एडेड रहेगा इसमें मैम। उसके बाद एडवांस रिपोर्ट्स में उसका सारा प्रोफाइल वगैरह शो करेगा उसको कि मतलब उसका सारा एड्रेस, सिटी, कौन सी सिटी से है, एड्रेस कहाँ का, यूजर नेम, पासवर्ड भी स्टूडेंट का स्टाफ को शो करेगा। कंप्लेन मॉड्यूल में वही है मैम कि हम लोग कंप्लेन डाल सकते हैं कि इस स्टूडेंट का वो कंप्लेन मॉड्यूल में मतलब उसको जो और कंप्लेन है वो रिप्लाई करना है इसको। लीव मॉड्यूल में चेंज पासवर्ड, लास्ट में चेंज पासवर्ड है उसको, अगर करंट पासवर्ड न्यू का पासवर्ड याद नहीं है उसको तो फिर वो चेंज कर सकता है पासवर्ड। फिर उसके बाद स्टूडेंट अपना जो है वो पेज को लॉगिन करेगा, तो लैंडिंग पेज वापस से लॉगिन होगा। देन उसका स्टूडेंट का प्रोफाइल वो हाँ खुल जाएगा। स्टूडेंट के प्रोफाइल में उसको वो कितने दिन टोटल उसका अटेंडेंस कितना है, वो प्रेजेंट कितने दिन था, एब्सेंट कितने दिन था, लीव उसने कितने दिन का लिया है, वो सारा उसको अपने वो अटेंडेंस पोर्टल में उसको वो शो करेगा होम पेज वाले। देन उसके बाद वो अपना प्रोफाइल लॉगिन करेगा, तो उसको प्रोफाइल में अपना सारा नेम, ईमेल, एड्रेस, सिटी, पिन कोड, फोटो वगैरह उसको शो करेगा।
लीव फॉर्म में, हाँ लीव फॉर्म में वो अगर हाँ, वो कहीं बाहर जाना चाहते हैं, फिर उसको लीव चाहिए, तो फिर उसमें वो लीव डाल सकता है लीव फॉर्म के थ्रू। स्टेटस भी शो करेगा कितने दिन के लिए उसको चाहिए लीव, ये सारा कुछ। कंप्लेन फॉर्म में वो जो भी कंप्लेन है उसका, जो तो वो उसको उस कंप्लेन फॉर्म के थ्रू डाल सकते हैं। और उसका लास्ट में कंप्लेन फॉर्म में जो उसको मैसेज वो शो करेगा। और अटेंडेंस रिपोर्ट में भी सारा चीज वो देख पाएगा कि हाँ मतलब वो कितने दिन तक वो मतलब उसका एब्सेंट प्रेजेंट और डेट वगैरह सब कुछ टाइम के साथ शो करेगा। मैम ये सारा चीज ये स्टूडेंट का है। चेंज भी कर सकते हैं पासवर्ड लास्ट में। दैट्स इट। हाँ मैम देख लिए। हेलो। हाँ हाँ हेलो। हाँ तो सर, ये तो अभी तक तो इतना ही हुआ है, मतलब अगर इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करना होगा तो एक बार बता दीजिए। नहीं, चेंजेस कुछ नहीं करना है इसका। वो फर्स्ट और सेकंड स्लाइड में चलो ना। हेलो। इसका फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में लेकर चलो। फर्स्ट और सेकंड स्लाइड। हाँ सर, ये पहला पेज है सर, लैंडिंग पेज। अच्छा अच्छा, इसमें जो ये जो तुम्हारा लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज में ये होम, स्टैंडर्ड, स्टाफ, फीडबैक, ये सब क्या है? सर ये सारा मतलब ये जो है ना, ये होम पेज मतलब लैंडिंग पेज में ये सारे नेविगेशन बार में रहेगा। जैसे होम के अंदर ही ये सारा अच्छा, हमको शो सारे लोग को करेगा। मतलब स्टैंडर्ड में रिलैक्स जब हम कर। क्लिक करेंगे, हेलो, ठीक है, वैसे तुम्हारा ये वाला जो है पीपीटी जी मोरलेस सारा कुछ इसमें है। ठीक है, इसमें यस कुछ सर। ऐड और रिमूव करने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, इसमें सारा कुछ ओके है। ये सारा कुछ हो जाएगा ना, बन जाएगा ना? यस सर। हाँ फिर ठीक। हाँ सारा कुछ ओके है। अगर कुछ चेंजेस है तो ये नहीं, कोई चेंजेस नहीं किए, चेंजेस तो कुछ सारा नहीं है, कुछ बहुत ओके है। बड़ा प्रोजेक्ट है ये। ठीक है सोनाली, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हाँ, तो इसको बड़ा हो थोड़ा सा जाएगा। अच्छा से तुम लोगों को एंड तक लेके जाना है। ठीक है, सबसे ह्यूज प्रोजेक्ट तुम बना रही हो। मैक्सिमम अभी तक जो भी प्रोजेक्ट डिस्प्ले किए उसमें से तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है, तुम इस प्रोजेक्ट को 2 कैटेगरी में डिस्प्ले कर रही हो। एक स्टूडेंट लॉगिन है, स्टूडेंट भी लॉगिन करके अपना डिटेल्स देख पाएगा। ठीक है, और यस स्टाफ भी लॉगिन करके जो भी है उसको ये कर पाएगा। यस ठीक है, तो उसको यस। तुम्हारा इसके बाद वाला जो पेज है उसको उस पे चलो। हाँ मैम। हाँ, ये जो तुम बनाई हो ना, इसको ये बहुत ही मतलब अच्छा बनाई हो। इसको अच्छा से अब करना है। ओके मैम। हाँ, उसको उस तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप तुमको लेके चलना है। जैसे ये वाला जो पेज है, इसमें स्टूडेंट लॉगिन भी है, इसमें स्टाफ लॉगिन भी है, जिसमें यस यहाँ पे स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स दिखा रहा है। स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स किसका दिखा रहा है ये? मैम, ये स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स जो है वो स्टाफ का है। स्टाफ का है। यस ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट स्टाफ का है वो यहाँ पे जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? उस पे स्टाफ लॉगिन करेगा दिखेगा उसका, तब जाके वो रिफ्लेक्ट करेगा ना। यस यस। हाँ, मतलब ये जैसे पेज तुम दिखा रही हो यहाँ पे, सपोज करो एक तो डिसेबल रहेगा ना, स्टूडेंट डिसेबल रहेगा, स्टाफ रहेगा। उसके बाद इसको जैसे ही वो लॉगिन करेगा, वो जो देखना चाहेगा स्टैंडर्ड रिपोर्ट है वो, ये स्टाफ का कैटेगरी है। यस ठीक है ना। हाँ हाँ, उसके बाद वाला ये स्टाफ का रिपोर्ट। हाँ, ये स्टाफ का रिपोर्ट है। मतलब ये बेसिकली फोटो, नेम, ईमेल, मतलब उसका डिटेल्स है, पर्सनल डिटेल्स जो डिटेल्स है। है। यस मैम। हाँ,
ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मतलब स्टाफ का जो तुम जो स्टाफ वाले टैब में क्लिक करने से here will get Yes, all the details of all our staffs and employees, yes. isn't it? हाँ, ओके, ठीक है, आगे बढ़ो। सेम चीज तुम्हारा स्टूडेंट में भी है, जो चीज Yes. स्टाफ, हाँ, गुड, ठीक है, आगे बढ़ो। मैम ये कॉन्टेक्ट अस का एडमिन पैनल वाले में क्लिक करेंगे ना तो वो डायरेक्ट एडमिन का जो लॉगिन पेज है ना वो खुलेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे। ये एडमिन एडमिन का लॉगिन लॉगिन। पैनल जो भी है, हाँ। अब इसमें तुम्हारा एडमिन मेनू का जो भी प्रोसीजर है, ऐड स्टैंडर्ड जो भी है, यस मैम। हाँ, ठीक है, ओके। ये डिवीजन। बट इसको अच्छे से करना है, टाइम ओके मैम। लगेगा तुम्हारा इसमें करने में, तो तुम लोग जैसे इसको बनाई हो उसी तरीके से उसको करना है, ठीक। बोर्ड के साथ मैम ये स्टाफ जितना भी यहाँ से डिटेल्स। मतलब जो अब जो तुम दिखा रही हो मेरे को, एडमिन पैनल में जाके जो एडमिन बंदा है वो इसको चेंजेस कर सकता है। यस मैम। हाँ, ओके, सारा कुछ ऐड स्टैंडर्ड, ऐड डिविजन्स, ऐड स्टाफ, स्टाफ रिपोर्ट, सारा कुछ वो मैनेज कर सकता है, ठीक है। यस मैम। हाँ, ठीक है, ये स्टाफ रिपोर्ट, हाँ, कंप्लेन फॉर्म, ठीक है, समझ गए, क्लियर है, ठीक है। बस इसमें अच्छे से तुम जैसे इसमें उसी तरीके से दिखाई हो उसको उस तरीके से तुमको कंप्लीट करना है। ओके मैम स्टेप बाय स्टेप जैसा है सेम हाँ वैसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें, हाँ, थैंक यू। वेलकम। मिताली, यस मैम। तुमको कुछ प्रेजेंट करना है? यस मैम। अच्छा, ठीक है, तो वेट कर। We got a project on restaurant management system on the administrator based. First, this is our login page where we log in through the name and the password. After this is a home page where we acha menu bar. There is a menu bar, pages home pages. So menu, book table, order list, billing and net earning. And then this is a menu list where we select and order the menu through where we order through the menu. And ये सारा ही मेन्यू मतलब ये सारा हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन मेन्यू बार.
This is a format of booking a table where we got a customer name, phone number, email, date, and time. Uh, and by selecting book a table, we got a table number or table ID. This is a order list where we store a order of the customer. Date. Where order ID restaurant and नहीं order ID restaurant driver client नहीं रहेगा मैम डेट रहेगा amount रहेगा order type रहेगा. This is a billing page where we item how much item we order and collect item name, unit, price, quantity, and total. And by clicking on process, we get a order. This is a net earning of restaurant where we show a payment fee, raw material, marketing, admin, operation, other rent. There is one admin option also where admin create a user and password. User, password, view customer, view booking, all log out. By clicking on view booking, we user password. Now we have an extra page that we are not included in this. In the home page, we generate an admin page where we can create new ID password for the general members, general employees, and in which admin can create and also delete the user ID password if anyone can resign from that restaurant or something. Three section रहेगा, view customer, booking, log out. And in admin page also there is a view customer in which customer is a regular customer or a one-time customer, and admin also can show all the bookings that are cancelled or that are coming out. And that's it. रजत कुछ पूछना है इसमें? इसमें थोड़ा सा मुझे ना प्रोसेस को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये प्रोसेस किस तरह से काम करता है। रिच का मतलब क्या होता है? जैसे ये जो कस्टमर सर जैसे ये वेरिफिकेशन है या नहीं कस्टमर के लिए नहीं है सर, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, बस एडमिन ही कर सकता है। अच्छा ठीक है, सिर्फ एडमिन के लिए। अच्छा ठीक है, तो सर सिर्फ ये एडमिन के लिए। हाँ बोलिए। सर ये सिर्फ ये जैसे लॉगिन नेम और पासवर्ड है, तो ये जो कस्टमर बोल रहे हैं, जो एम्प्लॉय को
दिया गया है एडमिन थ्रू पासवर्ड और उसका आईडी, वो उसके थ्रू लॉगिन किया। ठीक है। और लॉगिन करने के बाद ये होम पेज आया। होम पेज के अंदर ये सब मेन्यू रहेगा, मतलब मेन्यू बार रहेगा, जैसे होम, मेन्यू, बुक और टेबल, ऑर्डर लिस्ट, बिलिंग, नेट अर्निंग। ठीक है। मेन्यू को क्लिक करके हम लोग ये सब मेन्यू है जहाँ एम्प्लॉय ऑर्डर ले सकता है। ठीक है। हाँ ठीक है, आगे। और ये बुक का टेबल है। अगर कोई हम लोग को कॉल करके बुक करना चाहे टेबल, तो हम लोग बुक कर सकते हैं, मतलब एम्प्लॉय, वहाँ का एम्प्लॉय, रेस्टोरेंट का एम्प्लॉय बुक कर सकता है टेबल, उसका नाम, फोन नंबर, ईमेल आई। सेकंड है ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हम पूरा दिन, मतलब पूरा डेज में कितना ऑर्डर आया, कितना मतलब कस्टमर आए और ऑर्डर हुआ, वो ऑर्डर लिस्ट में पूरा रहेगा, स्टोर रहेगा। ठीक है। और ये बिलिंग का पेज है। बिलिंग का पेज में आइटम नंबर, मतलब कितना आइटम गया वो नंबर का, अगर चीज, बर्गर या कुछ है वो कितना, मतलब सेल्स कितना, मतलब 1 2 3 वो नंबर सब रहेगा, आइटम नंबर रहेगा, यूनिट और प्राइस रहेगा, क्वांटिटी रहेगा, उसका टोटल। लास्ट में हम लोग प्रोसेस में क्लिक करके वो पूरा बिलिंग हम लोग ले सकते हैं कि कितना टोटल हुआ। तो प्रोसेस करने के बाद हम लोग बिल जनरेट हो जाएगा, जिसमें डेट, टाइम, आपका सारा प्लान किस मोड पे है वो सब रहेगा। और ये लास्ट में उस रेस्टोरेंट का नेट अर्निंग है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट अर्न किया वो रेस्टोरेंट पूरा दिन भर में, वो पूरा ये सिर्फ एडमिन के पास रहेगा नेट अर्निंग का, ये एम्प्लॉय नहीं देख पाएगा। डेली वाइज, मंथली वाइज सारे है ना। कुछ बोलो। रेस्टोरेंट में जाते हो तो क्या होता है? नो सर, वो रेस्टोरेंट कस्टमर जैसा है ही नहीं ना। नहीं, अभी आप रेस्टोरेंट के लिए बना रहे हो। हाँ। रेस्टोरेंट में जाओगे तो क्या होगा? क्या करते हो रेस्टोरेंट में जाते हो? ऑर्डर करते हो। ऑर्डर करने के बाद ऑर्डर तो इसके बाद ना, ऑर्डर जब करते हो ना तो किचन में उसका आपका ऑर्डर जाता है, उसको पीओटी बोलते हैं। वो वो रोटी बनाना है, एक टेबल में 10 आइटम्स का ऑर्डर, 1 टाइम हो सकता है, 2 टाइम्स टेबल उसके लिए प्रिंट आउट निकलता है, किचन में जाता है और उसका डिटेल्स आपके नेक्स्ट टाइम से जब बिलिंग करते हो तो क्यूटी का सारा रेफरेंस लेके बिलिंग हो जाता है। जब तक बिलिंग नहीं होती वो टेबल ब्लॉक रहता है, मतलब उसको दूसरा बिलिंग नहीं होती। सेकंड ऑप्शन ये है कि 4 लोग का बैठने का 6 लोग आ गए या 8 आ गए तो 2 टेबल को मर्ज करते हैं। ये होता है ना, मर्ज करते हैं, तो आपको 2 टेबल को मर्ज करने का ऑप्शन है। केओटी कैंसिल, ऑर्डर कैंसिल कर दिया अभी नीचे वो कर। अच्छा। रेस्टोरेंट में जनरली यही होता है, आप केओटी जनरेट करोगे, जब तक केओटी नहीं जनरेट होगा बिलिंग नहीं याद, कितने को याद रखेंगे इस टेबल में क्या टेबल है, इसका याद रखेगा, क्या बिलिंग का नॉट पॉसिबल है और नहीं याद रख सकते। केओटी आपको यानी जब भी बिलिंग करना है केओटी से नहीं कर 10 केओटी में तो 10 का बिलिंग करना है, वो टेबल रिलीज हो जाएगा, 10 का बिलिंग करना है तो वो टेबल रिलीज हो जाएगा। ये टाइम होता है और ये
जितने भी गेस्ट आएंगे उसके, और ये सब ये दिखा सकते हो पूरे महीने आज बार क्या पेमेंट जो आ रहा है वो 2 तरह से आ रहा है, कार्ड से आ रहा है, इसका डिटेल्स चाहिए, कैश है या ऑनलाइन। एनी और सामने जो मैनेजर बैठा है काउंटर पे, उसको कितना कैश अपने डिटेल चाहिए ना, ये टोटल सेलिंग है 10,000 का कैश में, तो 7,000 रुपये कैश में है, बाकी सब वो ऑप्शन जो बिलिंग जो आप कर रहे हो वो नहीं है, प्लस वो जो परचेज करता है डेली एक्सपेंसेस, उसका डिटेल्स है, तो आज का एक्सपेंसेस ये है, ये तो कलेक्शन तो कैश इन हैंड इतना, तो सर नेट अर्निंग में है। वो नेट अर्निंग में, ये तो नेट अर्निंग तो लास्ट है ना, आपको एक्सपेंसेस का डिटेल्स कहाँ दिखा रहे हो? सपोज उसने टिश्यू पेपर खरीद लिया 200 रुपये, उसकी एंट्री होनी चाहिए, तभी तो आप नेट अर्निंग को माइनस करोगे। उसका एक अलग सेक्शन, मतलब एक अलग सेक्शन बना देंगे। हाँ, एक अलग सेक्शन जिसमें डेली एक्सपेंसेस जो एंटर लेमन लगाना है, मिर्ची मंगानी है, कितनी मंगाना है, 10 रुपये का किसी कस्टमर ने डिस्काउंट लिया मंगा लिया, प्लस आपको जो बिलिंग दिखाना है किसी कस्टमर रेस्टोरेंट में जीएसटी कैलकुलेट, जीएसटी का भी दिखाना है, ये अमाउंट है तो जीएसटी का भी दिखाना है, ये अमाउंट है, ये जीएसटी लगा, ये टोटल हुआ और एक सेक्शन वो एक्सपेंसिव है। हाँ, एक्सपेंसेस का केओटी कैंसिल करना है, कैंसिल हो गया तो 8 का ऑटोमेटिक बिल बना। क्या राजू जी ठीक बोल रहे हैं ना? मेरा आवाज नहीं आ रहा, चल रहा है आपको ये ठीक है, और कोई है? नहीं है अभी ना, वो पेन पेपर ये ड्रॉ कीजिए सब फॉर्म, तो फिर आइडिया लग जाएगा करना क्या। मैम मितालिया, मैम 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 वो उसका तो मैम स्विच ऑफ है, तो मैम मेरे से जितना हुआ हम अकेले किए हैं कुछ कुछ। यस मैम, मैम फोन में ही शेयर कर दे मैम थोड़ा। यस मैम। मैम पहला पेज है लॉगिन पेज, मैम उसके बाद होम पेज आएगा जिसमें प्रोडक्ट, कस्टमर, कैटेगरीज, यूजर्स और ऑर्डर्स। तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम क्या था? इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ओके मैम उसमें प्रोडक्ट, कस्टमर, कैटेगरीज, यूजर और ऑर्डर रहेगा होम पेज पर। फिर हम जैसे ही कैटेगरीज खोलेंगे, उसमें कैटेगरीज का लिस्ट आएगा जिसमें कैटेगरीज आईडीज होगा और कैटेगरीज का नेम होगा।
उसमें हम ऐड भी कर सकते हैं और कैटेगरीज नेम एडिट करना होगा वो कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर क्लिक करने से कस्टमर को मैनेज कर सकते हैं, जिसमें कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर फोन नंबर रहेगा। इसको भी ऐड, एडिट और डिलीट कर सकते हैं। मैम उसके बाद मैनेज प्रोडक्ट कर सकते हैं, जिसमें प्रोडक्ट लिस्ट को मैनेज करेंगे, जिसमें प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट प्राइस, डिस्क्रिप्शन और उसके कैटेगरीज होंगे। मैम उसके बाद यूजर्स को क्लिक करने से यूजर्स को मैनेज कर सकते हैं। मैम उसके बाद ऑर्डर्स को क्लिक करने से हम ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं। मैम बस इतना ही है। तुम क्या करना ना मिताली, इसका ना पीपीटी मेरे को भेज देना, ठीक है? ठीक से Yes, तो ma'am. समझ नहीं हाँ. आ रहा है। हाँ, और Yes, ma'am. हाँ हाँ, एक बार भेज देना। एक बार पूछ लो रजत जो भी। हाँ, इसमें इन्वेंट्री का तो अभी तक कुछ भी नहीं है, ठीक है? और भी उसका आगे इसको करना होगा। जो भी प्रोडक्ट डिटेल्स है, तुम्हारे स्टॉक में क्या प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है, कितना परचेज Yes, हुआ sir. है, क्या परचेज हुआ है, कि कैटेगरी वाइज सारा जो प्रोडक्ट है वो लिस्ट वाइज आएगा, ठीक है? और हाँ. अगर किसी को, जैसे इन्वेंट्री में क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो जितना भी स्टॉक है हमारा, क्या क्या चीज, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका एक स्टॉक बनता है, इतना मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, इतना प्रोडक्ट हमारा अभी स्टॉक में अवेलेबल है, ठीक है? अगर कोई परचेज करता है तो कितना परचेज हुआ है वो तुम्हारे स्टॉक में से माइनस होगा, ठीक है? वो सारा जो डिटेल्स रहेगा वो सारा चीज अभी इसमें ऐड नहीं हुआ है, ठीक है? वो सारा कुछ को ऐड करना है। यस सर। क्योंकि मेन तुम्हारा जो प्रोजेक्ट का जो नाम है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। जो तुम्हारा जो स्टॉक है वो मैनेज नहीं होगा तो लगता है कि सॉफ्टवेयर कुछ काम करनी है, ठीक है? पहले प्रोडक्ट को ऐड करना, ठीक है? और ये जो प्रोडक्ट रहेगा वो कहाँ से, मतलब इशू कहाँ पर ही होगा? ये प्रोडक्ट इशू भी तो होगा ना, तो वो चीज प्रोडक्ट तो सिर्फ एंट्री हो रहा है इसमें अभी। हाँ, यस सर ऐड कर लेंगे। एक सेक्शन और रहेगा जहाँ पर इसे प्रोडक्ट इशू होगा, किसी को भी हो सकता है, या परचेज होगा या सेल होगा, ठीक है? जैसे अगर कोई कंपनी अगर परचेज एंड सेल करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करके रहता है, तो उस वहाँ पर भी एंट्री होता है एंड डिस्पैच होता है ना? उसी तरह से मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर को एज ए लाइव सोचना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है? कि ये प्रोसेस क्या रहेगा, एक प्रोसेस सोच के उस प्रोसेस पे इम्प्लीमेंट करना है सारे को, ठीक है? कि ये जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो सारे लोग के लिए इजी हो, इजी टू यूज हो, एंड जो मेन काम है इसका, इस सॉफ्टवेयर का, वो एटलीस्ट वो फुलफिल सारा करे, ठीक है? अगर ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है तो इन्वेंट्री का सारा कुछ होता है, तो बहुत सारा कैटेगरी ऐड हो जाएगा, ठीक है? जहाँ से अगर जैसे कोई परचेस कर रहे प्रोडक्ट, तो वो परचेस से लेके एग्जिट तक उसका सारा डिटेल रहेगा, ठीक है? परचेज हो रहा है, ठीक है, क्या किस क्वालिटी का है प्रोडक्ट है, अगर वो सेल हुआ है तो किस एमआरपी में सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, वो सारा कुछ मेंटेन होगा, ठीक है? यस सर। फिर वो अकाउंट सेक्शन अलग होगा उसका, जहाँ पर ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रहेगा मेंटेन किया जाएगा, तो वो सारा चीज को भी तुमको ऐड करना होगा इसमें, ठीक है? यस सर। तो इसको पहले पीपीटी को थोड़ा सा कंप्लीट करो आप, उसके बाद एक बार मैम को दिखा लो, ठीक है? यस सर। उसके बाद मैं भी देख, यस सर। इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे। सेकंड स्लाइड है क्या?